Welcome back, students. In the last video we studied about excretion, and I just want to share with you one thing. The spellings of uricotalic and aminotalic and uricotalic. I just want to make one correction. I had written there T-E-L-L-I-C. So you must write it T-E-L-I-C. Only single L. Sometimes it happens from us also. So you just change this. The spelling will be T-E-L-I-C, like this. Okay. So in all the three, the spelling of talic you have to write down T-E-L-I-C. Okay, then we start in our today's video. As we learn transportation in animals, in today's video I am going to tell us about transportation in plants. First important thing comes out. So why there is requirement to study transportation in plant? As we all know that plants are also living. That means they need all these things which are required just like animals. They are different only in one thing, that they cannot move from one place to another place just like animals. They remain fixed on their position. This is the major difference between plants and animals. Otherwise, both need all these things which are mostly similar. So just like animals, plants also need transportation. Then again there is question, that means they have certain organ or tissues which help the plant in this process. So I am going to tell you first about what is tissue. Tissue is a group of cells who perform or which perform same function. You all know that cells are the basic unit of life. That means if more than 1, 2, 3, 4, 5, 10 or number of 100 cells are in a group and doing the same function, then this complete group is known as tissue. That means plants have tissue. The tissue which help in the process of transportation. They are known as vascular tissue. Okay? So group of cell performing same function is tissue. This, and the tissue which help in transportation in the plants are known as vascular tissues. Okay? Then again you can ask a question. What kind of vascular tissues are present in plants? Basically, there are two types of vascular tissue. Okay? The first one is xylem, and the second is okay. So these are two tissues, xylem and phloem, which are going to help the plant in the process of transportation. And as you already know, basically during the process of transportation or circulation, food and oxygen or different gases and water is transported from one organ to another organ. Okay? Here you always remember that xylem always carry only water, and the second tissue, phloem, carry only food. Okay? Up to this we can understand
the process of transportation and the different tissues which help the plant in the transportation and what the things which are transported by them. Then next question comes in our mind, how transportation occurs. Okay, see the structure of plant. I am trying to make a small structure of tree. See, these are roots, and roots presenting or roots are always present in touch of soil. Then comes stem. In most plants the stems present in above the ground. Then there is leaves. You all know leaves help in the plant to make food, and the process is photosynthesis. ओके, तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस में लीव्स क्या कर रही है, फूड बना रही है। सपोज अगर इस लीफ के पास फूड बन रहा है तो इस फूड को उसको सभी ऑर्गन्स को ट्रांसफर करना है, तो इस प्रोसेस में हेल्प कौन करेगा, फ्लोएम। और इसी तरह से आप जानते हो कि हम प्लांट को जब वाटर देते हैं या पानी देते हैं तो आप हमेशा मिट्टी में पानी डालते हो, इसका मतलब वाटर ऑलवेज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, और रूट से धीरे धीरे वो फिर स्टेम पे जाता है और स्टेम से वो लीव्स के थ्रू बाहर की तरफ जाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम द रूट्स। रूट्स के पास हेयर्स होते हैं, दे आर नोन एज रूट हेयर्स। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रूट हेयर। जब भी कभी आपने अगर कभी किसी घास को या किसी छोटे पेड़ पौधे को बाहर निकाला होगा तो आपने देखा भी होगा कि छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स जो होते हैं वो रूट पे प्रेजेंट होते हैं। दीज आर नॉन एज रूट हेयर्स। रूट हेयर हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी सबसे पहले रूट्स एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद में ये पानी जो होता है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता है थ्रू द फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज सक्शन फोर्स या ट्रांसपिरेशन फोर्स, एंड फिर ये एंटर करता है इन द स्टेम। दिस कंप्लीट प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ द टिश्यू जाइलम। ओके, तो यह इसका क्या हो गया, द वे। अगर आपसे कोई पूछे कि पानी किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है तो आप आराम से बता सकते हो कि फर्स्ट इट एंटर इन द रूट हेयर्स, देन रूट हेयर से एंटर करेगा इनसाइड द रूट्स, फिर रूट से होता हुआ किस में जाएगा, ये स्टेम में, और स्टेम से जैसे ये ब्रांचेस हैं तो फिर वो ब्रांचेस में, फिर ब्रांचेस से लीव्स के अंदर, लीव्स के बाद में वो फ्लावर्स में, और डिफरेंट जितने भी उसके पार्ट्स हैं उन सभी के अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो अगर हम सोचें कि ये किस तरह से गया, वी कैन से फर्स्ट इट इज रूट हेयर, देन रूट, फिर कहाँ गया स्टेम, उसके बाद वाटर एंटर इन ब्रांचेस, ब्रांचेस से गया इन लीफ और अदर पार्ट्स। अगर वहाँ पे फ्लावर भी हैं तो फ्लावर में भी जाएगा, और अगर उसके पास बर्ड्स हैं तो बर्ड में जाएगा। तो ये होता है ट्रांसपोर्ट का तरीका और प्रोसेस कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, और इस पूरे प्रोसेस में हेल्प कौन कर रहा है, जाइलम। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फूड, तो फूड का डायरेक्शन दोनों साइड हो सकता है। अगर किसी प्लांट के अंदर स्टेम नीचे की तरफ है तो फूड कैन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लोअर टू
अपर साइड, और जैसे यहाँ पे अपन देख रहे हैं तो लीव्स से वो किधर आएगा, नीचे की तरफ. तो फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन बाई डायरेक्शन. देख लेते हैं एक बार. देखो, फूड लीफ में अगर सिंथेसाइज हो रहा है तो लीफ से जाएगा किसमें, स्टेम में, और स्टेम से रूट में, और ऐसे भी जा सकता है कि लीफ से गया ब्रांचेस, ब्रांचेस से गया, अगर उसमें फ्लावर लगे हुए हैं तो फ्लावर्स पे, और अगर बर्ड्स लगे हुए हैं तो बर्ड्स पे, और आफ्टर दैट इट विल रूट्स. तो एक तो डायरेक्शन ही हो गया, यानी ऊपर से शुरू होके नीचे की तरफ आया, वन डायरेक्शन. कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो स्टेम होता है ये सॉइल के अंदर होता है. स्टेम इज इनसाइड सॉइल, एंड ये जो स्टेम होता है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, इट ऑलवेज स्टोर फूड. अगर आप स्टेम भी नहीं सोचो तो इसकी जगह आप सोच सकते हो कि जैसे सीड है, आपने कोई सीड को जर्मिनेट होने के लिए जमीन में डाला, तो ये सीड भी क्या करेगा, स्टोर फूड है इसके पास. तो जब इस सीड से फर्स्ट ये आपका प्राइमरी स्टेम, जिसको ये प्राइमरी स्टेम जो निकला, ये प्राइमरी रूट्स जो निकली, इसको फूड किसने दिया, इस सीड ने दिया. तो सीड कहाँ था, जमीन के अंदर. तो इस केस के अंदर जो डायरेक्शन है वो कहाँ से हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ, और इस केस में क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ. दैट मीन्स फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर वो बाई डायरेक्शनल होता है. ठीक है. तो इस चीज से अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पानी भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है और फूड भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज क्लियर दैट प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस वेस्ट. इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स भी रिक्वायर्ड करते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. बट ऑलवेज रिमेंबर, मोस्टली the waste material of plant is useful for human and animals. For example, मैं तुम्हें कुछ नाम लिख के बताती हूँ which are wastage for plant but used by animals, and these waste are waste of plant, ऐसे प्लांट के वेस्ट जो कि क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं फॉर ह्यूमंस, or you can say for animals. For example, different types of dyes, any colors, gum, rubber, etc., etc. It is a quite long list. There are different waste material produced by the plant in the form of waste, but humans and different animals use them as useful things. ठीक है. तो इसलिए ये आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली गम क्या है, प्लांट का वेस्ट मटेरियल, और हम उसको यूज कर रहे हैं, तो प्लांट के लिए वो क्या है, वेस्ट. लेकिन जिस तरह से ह्यूमन के अंदर एक प्रोसेस होता है स्वेटनिंग का, ठीक इसी तरह से प्लांट में भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, एंड आई थिंक यू ऑल नो द नेम. इट टेक्स प्लेस from the leaves, and this process is transpiration. Transpiration means removal of excess water, removal of water in form of water vapor. ठीक है. एंड ये प्रोसेस जो होता है ये किसमें होता है, लीव्स के अंदर. तो ट्रांसपिरेशन
जैसे स्वेटनिंग होती है एनिमल्स में, ठीक उसी तरह से प्लांट के अंदर होने वाला प्रोसेस है, जिसमें लीव्स क्या करती हैं, अगर किसी प्लांट ने एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है तो उस वाटर को वो दिन के टाइम वेपर्स की फॉर्म में निकाल देती है। और जब वो लीव्स वेपर की फॉर्म में यहाँ से इसको पानी को निकालेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका भी जो टेम्परेचर दोपहर में बढ़ता है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से कम हो जाता है। और साथ ही इस प्रोसेस के टाइम पे भी कुछ जो वेस्ट होता है वो प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स as well as in plants. Okay, thank you. And for this, an activity is given in your book. It's very easy activity, and I just want to say that you must do this thing in your home, at your home, with help of your mother. आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, you have to take one potato, उसको पील कर देना है, यानी उसके ऊपर का छिलका उतार देना है, और छिलका उतारने के बाद उसके बीच में आपको क्या करना है, एक कैविटी बना देनी है। कैविटी बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो वॉल है वो डैमेज नहीं हो। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पोटैटो यानी आलू लेना है, ये आलू हो गया। इस आलू का जो ऊपर का छिलका है या जो कवर है उसको अपन को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको उसके अंदर एक कैविटी फॉर्म कर देनी है, यानी ये आलू का आउटर साइड हो गया, इस तरह से इसके अंदर आपको क्या बना देनी है, एक कैविटी। और कैविटी बनाते टाइम इस बात का पूरा ध्यान रखोगे कि इसकी जो वॉल है वो कहीं से पंचर नहीं हो, यानी इसमें छेद नहीं हो पाए या बहुत ज़्यादा पतली नहीं हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस पोटैटो को आपको एक छोटी प्लेट के अंदर रख देना है या कटोरी में रख देना है, इस तरीके से कि इसका हाफ पोर्शन उसके अंदर जो आप सॉल्यूशन डालो उससे क्या हो जाए, ढक जाए, इस तरह से। ठीक है। अब आप यहाँ पे दो काम कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन पहले अंदर डाल सकते हो या शुगर सॉल्यूशन बाहर डाल सकते हो। और उसके बाद अगर आप कुछ टाइम के बाद देखोगे तो जो सॉल्यूशन है वो आपको इसके अंदर पहुंचा हुआ मिलेगा। जैसे सपोज करो अगर आपने पहले से इसमें यहाँ तक सॉल्यूशन भर रखा है, तो हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद जब आप देखो तो ये जो सॉल्यूशन का लेवल है ये आपको ऊपर की तरफ मिले, इस जगह पर मिले। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो वाटर है वो सेल से होकर, एक सेल की वॉल से होकर दूसरे सेल वॉल से अंदर की तरफ इकट्ठा हो रहा है। तो ये बता रहा है हमें कि जो सेल्स है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। Okay, thank you.